सो आज देखो अपन को नॉन अलाइनमेंट पढ़ना है, उसके साथ इंडिया इन नॉन अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो सारी चीजें वी शैल बी लुकिंग एट इट. सो देखो, व्हेन वी लुक एट दिस टॉपिक, तीन टर्म यू विल कम अबाउट. वन इज नॉन अलाइनमेंट, सेकंड इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे हम नैम भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. तो सारा खेल ये तीन समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू गेट द क्वेश्चन यू गेट ट्रैप्ड इन दिस वन ओनली. ओके, सो देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट मीन्स व्हाट? वी आर नॉट अलाइंड. व्हेन वी आर लुकिंग एट द कोल्ड वॉर सिनेरियो, कोल्ड वॉर सिनेरियो में सिचुएशन क्या था? इट वॉज अ बाइपोलर वर्ल्ड, right? One was USA, another was USSR. But when we look at post Second World War, many of the nations in Asia as well as in Africa, in late 1940s and in 1950s, nations of Asia got independence, and in 1950s, slowly the nations of Africa started getting independent. But all these nations which were colonies, their main focus was to how to develop ourselves, because अभी just we are out of colonialism, so main focus was how to improve the economy, ensure prosperity for the people, tackle poverty, etc., etc. So in such a scenario, if these nations get entangled in this rivalry, तो उसके कारण दिक्कत क्या होता? अभी तुरंत आप कोलोनियलिज्म से निकले हो, but ultimately this would have resulted in a new colonialism or neo-colonialism. So after independence, in a bipolar world, when many of the third world nations, they got independence, then they realized that we do not want to get trapped into this bipolarity or superpower war once again. So that is why they wanted a foreign policy where they have this freedom or independence with respect to their foreign policy formulations. Suppose करो आप यूएसए के ब्लॉक में हो, तो naturally your foreign policy will have to be aligned with the USA. If you are with the USSR bloc, your foreign policy will have to be aligned with the USSR. But this is not what these nations wanted. They wanted that we should be free. We do not want to focus on the superpower rivalry, the superpower fight, but rather focus on ourselves. Such a policy was adopted by many nations of Asia and Africa, and that policy was called as non-alignment. ठीक है? That we are not aligned to any of the superpowers, but rather we are independent in our foreign policy making, and we shall be taking foreign policy choices as per our own needs and not as per the compulsions of these superpowers. Got it? Non-alignment क्या है? So non-alignment is basically, non-alignment is basically a foreign policy option for the newly independent nations of Asia and Africa, which aimed at not getting involved in the superpower rivalry, rather being independent in their foreign policy choices and taking decisions as per their own domestic needs. Got it? ठीक है. अब आता है
नॉन अलाइंड मूवमेंट। सो देखो, ये मूवमेंट भी था और ये एक बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन भी था। ओके, सो ऑल सच नेशंस which felt that we want to be free or we want to be independent in our foreign policy choices, तो ऐसे में क्या है कि सपोज करो यू आर वन नेशन, यू वेरी रिसेंटली यू गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, लेकिन इन सुपर पावर के कंपैरिजन में तो तुम कुछ नहीं हो। तो इवन इफ यू वांट टू हैव दिस फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, यू कैन नॉट इफेक्टिवली एंजॉय दैट फ्रीडम ऑफ और इंडिपेंडेंस, क्योंकि अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द ग्लोबल डिसीजंस इज बीइंग डोमिनेटेड बाय दीज टू सुपर पावर्स। लेकिन वही जो एशिया और अफ्रीका के नेशंस जो अलग अलग अकेले अकेले थे, बट दे वांटेड टू हैव दिस कॉमन फॉरेन पॉलिसी, अगर वो सारे के सारे देश एक साथ आ जाएं तो, अगर एक साथ आ जाएंगे, दे विल हैव अ ग्रेटर हेफ्ट, दे कैन कोलैबोरेट विथ ईच अदर, they can put their voice very strongly, perhaps by virtue of their strength they can even set the agenda, they can reduce the tension which was because of this bipolarity. So उसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन बना, all these newly independent nations of Asia and Africa, they came together and they form an organization called as NAM और नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया नॉन अलाइनमेंट और नॉन अलाइंड मूवमेंट में क्या है। दिस इज अ फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुपिंग। ये किसी एक देश का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये जो है ये एक ग्रुपिंग है, एक एजेंडा है ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन स्टांस, ऑफ नेशंस हैविंग अ कॉमन स्टांस। ठीक है, इन दोनों के बीच में सपोज का, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब क्वेश्चन आता है नॉन अलाइनमेंट पर, मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टार्ट राइटिंग अबाउट नैम। दिमाग में क्लियर रखना, नॉन अलाइंड मूवमेंट और नॉन अलाइनमेंट दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। वन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्रुपिंग, अनदर इज अ फॉरेन पॉलिसी चॉइस और फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन। गॉट इट? हाँ हाँ, देखो, गॉट इट। देखो, अगर आपको नॉन अलाइनमेंट पर क्वेश्चन आएगा, मोस्टली दिस क्वेश्चन विल बी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज दिस वाज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो दिस विल बी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ऐसे कोई फ्री फोकट नहीं आएगा, ये हमेशा आएगा इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एंड दिस वाज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हम किसी भी सुपर पावर के साथ अलाइन नहीं कर रहे थे। सो एट दैट टाइम वी सेड दैट आवर फॉरेन पॉलिसी इज नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, ओके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बट इट वॉज ए टोटली एन अलाइनमेंट। वो क्वेश्चन है कि इजंट दिस ऑल्सो एन अलाइनमेंट। ठीक है, हाँ ये एक अलाइनमेंट है, और अभी मैं थोड़ी देर में आता हूं, मैं थोड़ी देर में इसका खेल आपको बताता हूं। जो आपने क्वेश्चन पूछा एग्जैक्टली बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, और मैं इसी पर आऊंगा थोड़ी देर में। बट दिस वॉज दैट इट वॉज यस एन अलाइनमेंट, but when talking in context of this bipolarity, this alignment was away from this bipolarity. So yes, non-alignment was an alignment because there were a set of nations who had this common foreign policy vision. So naturally they were aligned towards non-alignment. लेकिन इसमें क्या मजेदार है, थोड़ा सा बस रुक जाओ, थोड़ा सा, एंड आई विल कम बैक टू दिस,
कि हाउ दिस केम बैक टू बाइट इंडिया इटसेल्फ, दैट दो यू मेड एन ऑर्गेनाइजेशन इन 19, ये बना था आपका नेम बना था 1961 में। जब 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ, कोई भी नेम नेशन इंडिया के साथ नहीं आया। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, कोई भी नेम नेशन इंडिया के साथ नहीं आया। 1971 कोई नहीं आया, क्योंकि अगेन वन थिंग इज दैट सिंस यू आर अ ग्रुपिंग यू शुड हैव, बट अगेन बात है भैया हम नॉन अलाइंड हैं। तो नॉन अलाइंड का मतलब यह भी है कि किसी के भी कंफ्लिक्ट में वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी पोजिशन, वेदर दैट कंफ्लिक्ट इज बिटवीन द नेम नेशंस इटसेल्फ। ये देखो, ये नेम नेशंस के बीच में था, ये चाइना उस समय नेम का पार्ट नहीं था, बट इंडिया वाज पार्ट ऑफ नेम। तो वो वहां भी यही बोल रहे थे कि भैया हम इंडिया का भी साइड नहीं लेंगे, हम चाइना का भी साइड नहीं लेंगे। तो ठीक है ना। सो यस, दिस वाज अ ग्रुपिंग, बट नेशंस एंड दे डिड हैव सम कॉमन एजेंडा। चाहे आप डीकोलोनाइजेशन की बात करो, चाहे आप एंटी रेशियलिज्म की बात करो, चाहे आप न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करो, ये कॉमन फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस थे। बट इट वाज नेवर कि तुम्हारे पंगे में मैं जा रहा हूं, जो कि सुपर पावर के साथ अलाइनमेंट का रिजल्ट था कि अगर अमेरिका का वॉर है उसमें ब्रिटेन घुसेगा ही घुसेगा, कनाडा जाएगा ही जाएगा। यूएसएसआर का है तो इसके साथ चाहे वो चाइना की बात करो, चाहे बेलारूस की बात करो, ये जाएगा ही जाएगा। बट यहां पे इट वाज नथिंग लाइक दैट। दिस वाज जस्ट अ ग्रुप ऑफ नेशंस हैविंग अ कॉमन विजन, but there was no sort of any obligation that you have to stand with me. So basically there was freedom even in case of mutual relation between non-aligned nations, that अगर इंडिया को अगर कंफ्लिक्ट हो गया 1962 में चाइना के साथ, तो ना वो चाइना के साथ खड़े थे ना वो इंडिया के साथ खड़े थे। प्रिंसिपली दे शुड हैव स्टूड विथ इंडिया, क्योंकि इंडिया वाज अमंग द लीडर्स फॉर क्रिएशन ऑफ नेम, बट वो इंडिया के साथ भी नहीं खड़े थे। पॉइंट वही है, वी आर नॉन अलाइंड, इट मीन्स वी आर नीदर विथ चाइना नॉर विथ इंडिया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दी थर्ड ऑप्शन, दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सो देखो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कुछ नया नहीं है, यही है, ठीक है। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसीलिए जब भी बात सवाल आता है, शुड इंडिया बी इन अलायंस विथ यूएसए, नो। शुड इंडिया बी इन अलायंस विथ यूएसएसआर, नो। क्यों? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट है और हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। तो अब देखो, आफ्टर 1991 कोल्ड वॉर एंडेड, राइट। तो अब सवाल आता है कि अभी भी अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट, तो नॉन अलाइनमेंट अगेंस्ट होम, क्योंकि पहले तो दो पावर थे, तो यू आर सेइंग दैट वी आर नॉट अलाइंड विथ एनी ऑफ देम। अब तो ले दे करके एक ही सुपर पावर रहा, तो अब तो अलाइनमेंट का सवाल ही नहीं उठता, राइट। सो दैट इज वाई इन द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस व्हेन, पहली बात, द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर, इंडिया का जो सबसे बड़ा सपोर्टर था यूएसएसआर, वो कोलैप्स हो चुका था। और उस समय बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस के कारण, चाहे आप गल्फ वॉर की बात कर लो, 1991 की बात कर लो, हमारी डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी की बात कर, डोमेस्टिक पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर लो, या फिर कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, मैंने बता दिया, इंडिया की इकोनॉमिक हालत खराब हो गई और आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यू एडॉप्टेड, राइट। अब इसके कारण क्या हुआ, वंस यू हैव गॉन फॉर एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यू वुड नीड न्यू मार्केट्स। तो अब क्या हुआ
कि इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, अब स्ट्रेटेजिकली नहीं, इट वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इकोनॉमी. सो इन द चेंज्ड डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल सिनेरियो, इंडिया हेल्ड दैट अब चूंकि नॉन अलाइनमेंट का कोई मतलब नहीं रहा, सिंस देयर वेर नो सुपर पावर्स, द न्यू फॉरेन पॉलिसी दैट इंडिया टर्म्ड वाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, that we are autonomous in our strategic decisions. So non-alignment is nothing, sorry, or strategic autonomy is nothing but reincarnation of non-alignment in a changed global order and changed India's priority, foreign policy priorities. क्योंकि इससे पहले आप बाइपोलर वर्ल्ड में थे, अब वर्ल्ड यूनिपोलर है. इससे पहले आपका मेन फोकस था डिप्लोमेसी पर, लेकिन लिबरलाइजेशन के आपका मेन फोकस हो गया इकोनॉमी के ऊपर. सो दैट इज व्हाई नाउ यू वुड वांट टू हैव गुड रिलेशंस विथ ऑल द नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड. आपको यूएसएसआर, रशिया से भी अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा, यूएसए से भी अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा, चाइना से भी अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा. तो पहले आपने क्या बोला, मैं किसी के साथ एंगेज नहीं करूंगा, राइट? बट आफ्टर द कोल्ड वॉर सिनेरियो वाज दैट you will have to engage with all. तो जब मुझे सबके साथ एंगेज करना है, तब मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी? तो उस समय आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या बन गई? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. दैट यस, आई एम एंगेजिंग विथ एवरी नेशन, बट डिस्पाइट दिस एंगेजमेंट आई एम ऑटोनमस इन माई स्ट्रेटेजिक चॉइसेज और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. ठीक है, समझ में आ गया क्या है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और क्या है नॉन अलाइनमेंट? ऑनलाइन क्लियर है सब कुछ? चलो ठीक है, ओके. किसके तरफ जाना चाहे, आज सिचुएशन जैसा रहेगा, कंडीशन जैसा रहेगा, उसके हिसाब से वो. यस, तो इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी टर्म होता है मल्टीपल अलाइनमेंट्स. ठीक है ना, नॉन अलाइनमेंट की जगह मल्टीपल अलाइनमेंट. ठीक है ना? तो इसीलिए जब भी अगर सवाल आता है तो हमेशा याद रखना, सिंस आवर फॉरेन पॉलिसी इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम वी एंगेज विथ ऑल नेशंस, वी एंगेज विथ चाइना, वी एंगेज विथ रशिया, वी एंगेज विथ यूएसए. हमारे बहुत डीप डिफेंस रिलेशंस हैं, हमने फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन कर रखा है. बट दैट डज नॉट मीन दैट वी आर अलायंस पार्टनर ऑफ एनी नेशन. हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. इसीलिए यू सॉ कि ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन क्राइसिस हम वी एंगेज्ड विथ यूएसए एट क्वाड, बट एट द, और यूएसए रशिया के सीधा अगेंस्ट था, but we remain engaged with Russia as well. We have good relations with Saudi as well as Iran, Israel as well as Palestine. यही तो एग्जाम्पल है. That all these nations, they have conflictual relations with each other, but we have good relations with all. रीजन क्या है? हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनमस है डिसीजन मेकिंग, एंड वी शैल टेक डिसीजंस एज पर आवर ओन फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स. हमारे डिसीजन कोई और नहीं लेगा, बिकॉज वी आर नॉट एन एलाई ऑफ एनी अदर नेशन. यूएसए कोई लड़ाई करता है, ब्रिटेन पीछे पीछे जाना पड़ता है, जब कनाडा को जाना पड़ता है, इंडिया नहीं जाएगा. इराक वॉर के टाइम पर 2003 में बुला था इंडिया को कि ठीक है, इराक का इंडिया में बहुत अच्छा, इराक में इंडिया का बहुत अच्छा इंप्रेशन है, तो इंडिया शुड गो देयर फॉर पुलिसिंग. अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, कैबिनेट ऑलमोस्ट एग्री कर गया था, बट इट वाज अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वी आर ऑटोनमस इन आवर डिसीजन मेकिंग. हमारा अगर यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन है, दैट डज नॉट मीन वी विल नॉट क्रिटिसाइज द यूएसए.
or we will stand with every decision of the USA. For example, you can say Russia and Ukraine. Got it? तो ये आपका ये 3 टर्म है, ये 3 समझ जाओगे, सारे का सारा खेल खत्म है। आ गया? अब देखो, अब अपन को बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करना है और कुछ नहीं। So the first topic that we have to discuss is NAM or non-aligned movement. ठीक है? So you see, since the very beginning, even while India was not independent, we had this idea of Africa and Asian solidarity. We were against imperialism, we were against colonialism. ये सारी चीजें तो हमारे प्रिंसिपल शुरुआत से ही रहे हैं। तो आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैड दिस कंटिन्यूअस एफर्ट सो एज टू एंश्योर कि किस तरीके से जो बाकी सारे नेशंस हैं, मतलब कि बाकी सारे नेशंस एक साथ आए, मेनली ऑफ द नेशंस ऑफ ग्लोबल साउथ, प्लस जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनका ये जो था ना, ही हैड दिस इंटरनेशनलिस्ट आउटलुक and India should have a leadership position in the world. तो naturally he would push more for this. लेकिन NAM के बारे में जाने से पहले 2 टर्म ऐसे हैं जिनके बारे में कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और विदेश वाले ना, फॉरेन वाले ना हमेशा बोलते रहते हैं। There are 2 terms, one is non-alignment, another is neutrality. ठीक है? देखो, ये दोनों टर्म टोटली अलग है। न्यूट्रैलिटी का मतलब क्या होता है? यू विल नॉट टेक एनी पोजीशन। जैसे कि स्विट्जरलैंड इज ए न्यूट्रल नेशन, मतलब कोई भी कहीं भी किसी देश में भी लड़ाई हो, स्विट्जरलैंड कहेगा कि नहीं, मैं किसी के साइड नहीं हूं। हैव पीस, हैव डिप्लोमेसी, आई कैन प्रोवाइड यू दैट मिडिल ग्राउंड फॉर मीटिंग ईच अदर टू नेगोशिएट सो दैट द पीस प्रिवेल्स। तो वैसे नेशंस को कहते हैं न्यूट्रैलिटी, वेयर नेशन विल नॉट टेक एनी डिसीजन, नेशन विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड। ठीक है? लेकिन नॉन अलाइनमेंट डज नॉट मीन न्यूट्रैलिटी। नॉन अलाइनमेंट बेसिकली मीन्स we will be actively engaged, but we will have good relations with all. यहां है we will remain neutral, but यहां क्या है कि भैया हम अगर साइड भी लेंगे तो हम अपनी मर्जी से लेंगे। We will have an independent position based on merit of the issue. जैसे जब यूएसए ने वियतनाम पर अटैक किया, इंडिया एंड अदर नैम नेशंस दे वेंट फॉर ओपनली क्रिटिसाइजिंग द यूएसए। इट मींस वी वर टेकिंग पोजीशन। अभी भी जब हम देखते हैं तो अगर रशिया ने किया यूक्रेन पर एंड देयर वाज डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन बूशा यूक्रेन में, तो इंडिया ने ये कहा कि ठीक है, सबको इंडिपेंडेंटली तुम इन्वेस्टिगेट करो, एंड हूसोएवर द परपेट्रेटर इज दैट शुड बी पनिश्ड। लेकिन भाई अगर न्यूट्रल रहता तो न्यूट्रल सीधे का सीधा कहता कि वी आर न्यूट्रल, वी आर नॉट गोइंग टू टेक साइड्स। यहां क्या है? यू विल रिमेन एक्टिवली एंगेज्ड, इवन यू विल टेक पोजीशन, but whatever position you will take, that will be independent, that will be based on your foreign policy understanding. ठीक है ना? and mainly on the merit of the issue. non neutrality में ऐसा कुछ नहीं है, you simply will not take any position. ठीक है? नॉन अलाइनमेंट के केस में क्या होता है? नॉर्मली जो आपका नॉन अलाइनमेंट है
वो जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज फार इजियर फॉर नेशंस टू ब्रिंग चेंजेस टू नॉन अलाइनमेंट, लेकिन जब आप बात न्यूट्रलिटी की कर रहे हो, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन होता है। न्यूट्रलिटी इज बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट, और अगर आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। जबकि नॉन अलाइनमेंट के केस में, जैसे इफ वी लुक एट इंडिया, वी सेड कि वी आर नॉन अलाइंड, लेकिन इंडिया चाइना वॉर के बाद वी वेंट क्लोजर टू द यूएसए। उसके बाद इन 1971 when we did not get any help from western powers, we went closer to and we signed a treaty with the USSR. It means non alignment gives you too much flexibility, जबकि न्यूट्रलिटी के केस में ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दिस इज अ लीगल टर्म, दिस इज जनरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि एज वी हैव सीन, नॉन अलाइनमेंट इज नथिंग बट जस्ट अ फॉरेन पॉलिसी चॉइस, और अगर कोई फॉरेन पॉलिसी चॉइस है, वो आसानी से बदल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना मुश्किल है, फॉरेन पॉलिसी चॉइस को बदलना तो मुश्किल नहीं है। गॉट इट? तो ये जो देखो देखो, यस इट कैन इंक्लूड, लेकिन देखो आप सीधे का सीधा फर्क पकड़ो। जब हम बोल रहे हैं कि हम वी विल टेक इंडिपेंडेंट पोजीशन, इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑल्सो मीन्स वी विल नॉट टेक एनी पोजीशन। जब हम बोल रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से लेंगे, इट मीन्स वी विल नॉट टेक एनी पोजीशन, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पोजीशन। न्यूट्रलिटी के केस में है क्या, यू विल नेवर टेक एनी पोजीशन, बट हियर you can take a position, you can not take a position depending on the merit of the case or merit of the issue. हाँ, डिस्ट्रक्शन अगर करने लगा तो इंडिया खुल के क्रिटिसाइज कर सकता है, हाँ करेगा, लेकिन वही अगर इंडिया न्यूट्रल रहता, या स्विट्जरलैंड है जो कि न्यूट्रल डिक्लेयर्ड है, स्विट्जरलैंड कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो ये दोनों, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है और वो एक लीगल टर्म है, and legal terms they are more strict. This is just a policy option and policy can change depending on the circumstances. आपने हमारे केस में in the past you have seen, ओके यूएसए के साथ अभी भी हमारा इतना अच्छा रिलेशन है। यूएसए कह रहा है कि तुम रशिया से तेल मत खरीदो, हमने मना कर दिया, हम तो भैया खरीदेंगे, हमारी जरूरत है, तुम सस्ता तेल दिलवाओ, हम नहीं खरीदेंगे। तो ये है नॉन अलाइनमेंट वर्सेज न्यूट्रलिटी, ठीक है। अब इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट वाले जो है ना, बहुत बार नॉन अलाइनमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि दिस इज इमोरलिटी, यू शुड टेक पोजीशन इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट। हम कहते हैं हमारी मर्जी, हमारा मन हम लेंगे, हमारा मन हम नहीं लेंगे, सो दैट इज नॉन अलाइनमेंट। लेकिन जब आप कह देते हो कि नहीं भैया हम बिल्कुल नहीं लेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट बना दिया, फिर फ्लेक्सिबिलिटी का कोई स्कोप बचता नहीं है, ठीक है ना। तो चलो ये क्लियर हो गया, नाइस। देखो फॉरेन पॉलिसी चलता ही सिर्फ मतलब के बेसिस पर है, इसका कोई दूसरा प्रिंसिपल नहीं है। करता ही है, हाँ करता ही है, सारे देश वही करते हैं। अमेरिका को देखो, हर जगह तुम डेमोक्रेसी पुश करने के लिए जाते हो, सऊदी में क्या है, थोड़ा सऊदी में भी डेमोक्रेसी पुश करो, यू विल नॉट। वही अगर सऊदी यूएसए के अगेंस्ट चला जाएगा तो यूएसए में भी वो डेमोक्रेसी पुश करने लगेगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि दिस वाज इन कंटेक्स्ट ऑफ टू मेजर चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड। One was that the world became bipolar, there were two superpowers, and the second thing was that in the 1950s and 1960s many of the nations in Asia and Africa they got independence, ठीक है, ओके। सो
two factors. One was bipolar world and second is Afro, एक मिनट, एफ्रो एशियन रिसर्जेंस लिखो या फिर ये भी लिख सकते हो डीकोलोनाइजेशन इन एशिया and Africa. So I have already explained that how these two factors resulted in nations, many of the nations of global south, mainly of Africa and Asia, going for non-aligned movement or non-alignment as their foreign policy choice. ये तो मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर बाइपोलर वर्ल्ड में आप अगर साइड लोगे तो विल नॉट बी इंडिपेंडेंट, आपका फोकस है खुद को डेवलप करना. सो बट ऑब्वियस you would go for a non-alignment, and when a multiple nations they get non-alignment, they came together and they form name that is non-aligned movement. ठीक है. Next, why these nations adopted non-alignment? बताओ व्हाट वर द रीजंस, ये नेशन सारे नॉन अलाइनमेंट इन्होंने क्यों लिया, सोच के बताओ. बिल्कुल सही, वांटेड टू अवॉइड द टेंशंस ड्यू टू बाइपोलैरिटी, राइट. नेक्स्ट. ठीक है, अगला ठीक है, ये भी लिखो, अवॉइड न्यू कोलोनियलिज्म एंड wanted to assert independence in FP फॉरेन पॉलिसी. और कुछ सेल्फ ग्रोथ, हाँ उसी को लिख लेते हैं, फोकस ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, टैकलिंग पॉवर्टी एटसेट्रा. ठीक है. और कुछ कुछ देशों का क्या था ना, इट वॉज डोमेस्टिक कंपल्सन. डोमेस्टिक कंपल्सन कैसे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर लुकिंग एट इंडिया, तो इंडिया के केस में क्या था, दैट इंडिया वॉज पॉलिटिकली वेरी मच डाइवर्स एंड डोमेस्टिकली वी हैड ऑल स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग. जब हम स्वतंत्र पार्टी की बात कर रहे थे तो दे वांटेड टू बी मोर कैपिटलिस्ट इन देयर ओरिएंटेशन, इकोनॉमिकली मोर लिबरल, तो वो चाहते थे यूएसए के नजदीक जाना. ऑन द अदर हैंड देयर वर कम्युनिस्ट्स, देयर वर सोशलिस्ट्स, दे वांटेड टू गेट क्लोजर टू द यूएसएसआर. तो अगर ऐसे में किसी भी एक ब्लॉक के साथ जाते तो नेचुरली देयर वुड हैव बीन डोमेस्टिक टेंशंस, क्योंकि बाकी लोग अपोज करने लगते. तो वैसे सिनेरियो में बेस्ट चीज क्या था, हम भैया दोनों में से किसी साइड को नहीं ले रहे हैं, एंड वी आर सिंपली रिमेनिंग नॉन अलाइंड. सो दीज वर डिफरेंट फैक्टर्स व्हाई दीज नेशंस दे वेंट फॉर नॉन अलाइनमेंट. बेसिकली क्या था, कोल्ड वॉर का टेंशन हमें नहीं चाहिए, हमें फॉरेन पॉलिसी में फ्रीडम चाहिए, हमें फोकस करना इकोनॉमिक ग्रोथ पर, सेल्फ डेवलपमेंट पर, हमें न्यू कॉलोनियलिज्म को अवॉइड करना है, एज वेल एज बहुत देशों में क्या था, डोमेस्टिक फैक्टर्स. बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल व्यूज बोथ टुवर्ड्स द राइट एज वेल एज टुवर्ड्स द लेफ्ट, that is towards capitalism as well as socialism. So the best way forward was remaining non-aligned, not taking any sides. ठीक है.
तो देखो, कमिंग टू दिस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेहरू, तो सबसे पहले नेहरू ने करवाया था आई थिंक एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, सॉरी एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले क्या था, जैसे ही हम फ्री हुए, लिख लो, एवोल्यूशन नहीं, इवेंट्स लीडिंग टू क्रिएशन। सबसे पहले क्या था, नेहरू इन 1947 हेल्ड एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फॉर सॉलिडेरिटी अमंग एशियन नेशंस टू फाइट अगेंस्ट न्यू इंपीरियलिज्म, ठीक है। इसके बाद सेकंड था, जिसे हम कहते हैं बांडुंग कॉन्फ्रेंस या फिर एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। यह हुआ था 1995, सॉरी 1955 में, ठीक है। बांडुंग इंडोनेशिया में है, ठीक है ना। ओके, तो इस बांडुंग कॉन्फ्रेंस के जो की आर्किटेक्ट्स थे, वन वॉज योर नेहरू, अनदर वॉज इजिप्ट के मोहम्मद अब्दुल गामेल नसेर, मार्शल टीटो युगोस्लाविया के, एंड सुकार्नो इंडोनेशिया के। दीज वर द मेन लीडर्स। और यहां भी, क्योंकि देखो क्या हुआ था कि इन 1950s many of the African nations they started getting independence. So since both these blocks they were previously colonies, तो एक कॉमन एजेंडा क्या मिला, अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, कमिंग टुगेदर अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, एज वेल एज टू अवॉइड दिस बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। और यहां पे क्या था, यहां पे फिर से कोशिश वही थी कि ब्रिंग एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस टुगेदर अगेंस्ट एंटी इंपीरियलिज्म, ठीक है। सो एंटी इंपीरियलिज्म वॉज अ कॉन्स्टेंट प्लॉट और कॉन्स्टेंट प्लैंक, क्योंकि सारे के सारे न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे विच वर प्रीवियसली कॉलोनीज, सो नेचुरली न्यू कॉलोनियलिज्म विल बी देयर कंसर्न, ठीक है। लेकिन यहां पे मामला बिगड़ गया कि नेशंस डिड नॉट एग्री टू दिस, because many of these nations they already had established good relations with वेस्टर्न पावर्स। तो जब आपने वेस्टर्न पावर के साथ अच्छा रिलेशन बना लिया है, हाउ कैन यू स्टार्ट कीप टॉकिंग अबाउट एंटी इंपीरियलिज्म। इससे क्या होगा, वेस्टर्न पावर के साथ तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई एशियन एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस और द बांडुंग कॉन्फ्रेंस दिस कुड नॉट बी सक्सेसफुल। हाउएवर, यहां से हमें क्या मिला, देयर वेयर सेट ऑफ 10 बांडुंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। और ये जो बांडुंग प्रिंसिपल्स थे 10, वही जाकर के आगे आपके नैम के प्रिंसिपल्स बन गए,
ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, बांडुंग प्रिंसिपल्स, जो आगे जाकर के, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर Bandung conference, when it also failed, then there was a realization कि rather than going for a organization based on geography, क्योंकि ज्योग्राफी देख रहे थे, एशियन ज्योग्राफी एंड अफ्रीकन ज्योग्राफी, but within this geography there were many nations who had varied interest. जैसे पाकिस्तान को देखो, वो सीटो सेंटो दोनों का मेंबर बन चुका था, इट वाज विथ द यूएसए। तो ऐसे केस में नेचुरली अगर आप ज्योग्राफी के बेसिस पर बनाओगे, it was realization कि rather than going for an organization based on geography, let us build an organization based on principles, कि हम वैसे सारे नेशंस को एक साथ लाएंगे who agree with the principles of non alignment, no matter वो देश अगर यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है, कहीं भी है। अब तक जो कोशिश था अराउंड ज्योग्राफी, अब वो कोशिश बदल के आ गया अराउंड प्रिंसिपल्स। और 1961 में देयर वाज बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस। बेलग्रेड जो है वो यूगोस्लाविया की कैपिटल थी, और यहीं पे क्या हो गया आपका, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम। तो 1961 में नैम केम इनटू एग्जिस्टेंस एट बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, और ये जो हम 10 प्रिंसिपल देख रहे थे, ये भी बन गए नैम के प्रिंसिपल्स, जो कि 10 बांडुंग प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस था, दिस वर अटेंडेड बाय 25 नेशंस, और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थे कि हु आर द नेशंस हु कैन ज्वाइन दिस ग्रुपिंग, क्योंकि अब ज्योग्राफी का बेसिस नहीं था that you have to be a nation from Africa or Asia, but now the grouping was more about principles, that do you follow or do your foreign policy options align with the principles of non-alignment. तो पहला क्या था, there should be independent foreign policy in context of world war. You cannot take side, your foreign policy needs to be independent. You need to oppose colonialism. You should not be a member of any military bloc. सुपर पावर्स के साथ किसी भी तरह का कोई बाइलैटरल ट्रीटी नहीं, एंड यू विल नॉट अलाउ मिलिट्री बेसिस इन योर टेरिटरी। तो बेसिकली यू कैन सी कि इट इज ऑल अबाउट दैट यू हैव टू रिमेन नॉन अलाइंड इन योर फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। आप अपने यहां ना बेस बनने दोगे, ना आपका किसी सुपर पावर के साथ ट्रीटी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, आप मिलिट्री ब्लॉक को अपोज करते हो, एज वेल एज आप कॉलोनियलिज्म को अपोज करते हो। सो ओनली द नेशंस हु फॉलोड दीज प्रिंसिपल्स कुड बी मेंबर्स ऑफ नैम, और फर्स्ट मीटिंग में देयर वेर 25 नेशंस। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से पहले इट वॉज बेस्ड ऑन टेरिटरी, नाउ नैम इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ principles. ठीक है, that the nations who follow these 5 principles only they can be members of NAM. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड चीजें डाइल्यूट हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह जब आ गए थे। लीडर्स कौन कौन था, नेहरू फ्रॉम इंडिया, अब्दुल गामिल नशेर फ्रॉम इजिप्ट, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया, क्वाम क्रुमा घाना, एंड सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया। ठीक है, तो these are the nations, these are the key leaders who were there when NAM came into existence, and NAM was the brainchild of these nations, these scholars or these thinkers or these political leaders only. ठीक है, अब देखो NAM के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं वो आपकी मटेरियल में लिखा हुआ है, बेसिकली 10 बांडुंग प्रिंसिपल्स करके लिखा हुआ है, उसमें यही सारी चीजें हैं।
रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। यू विल नॉट यूज वेपन्स अगेंस्ट अदर नेशंस, किसी भी तरह का, मतलब कि वही बिकमिंग अ गुड सिटीजन ऑफ ग्लोबल सोसाइटी, जो आपको सारी की सारी चीजें करने हैं। दोज वर द 10 बांडुंग प्रिंसिपल्स विच वर एक्सेप्टेड बाय द नॉन अलाइंड मूवमेंट्स। ठीक है, अब देखो, अब तक नैम के कुल मिलाकर के 19 समिट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये 2 साल पर होगा, 3 साल पर होगा, 4 साल पर होगा, 5 साल पर होगा। ठीक है, and in all these summits NAM has been putting up the agenda, NAM has been setting the agenda। क्योंकि स्टार्ट किया था 25 नेशन से, आज NAM में रफली 120 नेशन से। So there is a block of 120 nations, but naturally you are going to listen to their voices और listen to their concerns matter। क्योंकि 120 देश ले दे करके 195 196 देश हैं, 120 देश अगर किसी भी मुद्दे के साथ खड़े हो जाते हैं, इट मीन्स दे मस्ट बी लिसन्ड, दे मस्ट बी काउंटेड फॉर। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग टाइम पर इन्होंने अलग अलग मुद्दों को उठाया है। जैसे सबसे पहले पहला समिट तो था, उसमें आपका कॉन्गो क्राइसिस की बात हो गई, इंपीरियलिज्म और अपार्थाइड जो कि साउथ अफ्रीका में चल रहा था, उसके बारे में बात की। सेकंड के बारे में वही अपार्थाइड कॉलोनियलिज्म है। एंड और ये हो रहा है, सेकंड समिट ऑफ नैम टुक प्लेस इन 1964। और वहां पे हम क्या बात कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस में चाइना का रिप्रेजेंटेशन दो। जिस चाइना ने हमें तुरंत वॉर में हराया है, हम उस चाइना को कह रहे थे कि तुम यूएन का मेंबर बनाओ। क्योंकि पहले जो था ना, पहले ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वाज ताइवान, जो अभी ताइवान है ना वही। लेकिन बाद में जब चाइना और यूएसए के रिश्ते अच्छे हुए तो गोइंग फॉरवर्ड चाइना का रिकॉग्निशन मिल गया। ठीक है, तो देखो, हालांकि आपके मटेरियल में सब लिखा हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। बात है कि नैम का एवोल्यूशन 1960s, क्योंकि 61 में तो बना ही है, 1970s, 1980s। In 1960s it was against imperialism and neo-colonialism। ठीक है, in 1970s basically the focus was on economy। क्योंकि 1970 में क्या था, वंस अगेन देयर वाज अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। इसी के कारण आप 1980s में देख रहे हो वॉशिंगटन कंसेंसस इमर्ज्ड एंड द फोकस वाज ऑन नियो लिबरलिज्म। सो यहां पे नैम का डिमांड था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या फिर NIEO। क्योंकि दे आर्ग्यूड दैट द प्रेजेंट सिस्टम, as per the present system, the poorer nations they are getting exploited and the rich nations they are getting benefited। वही कोर एंड पेरिफेरी वाला कंसेप्ट है। ठीक है, so that is why they ask that there needs to be a new international economic order with the nations having greater control over the MNCs as well as the businesses so that the nations can also grow। ठीक है, and in 1980s the main focus revolved around disarmament, that nation should go for, all nations in the world should go for disarmament। ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा मामला कभी कभी नैम में क्या बिगड़ा है, 1979 में जब 6th समिट हुआ नैम का हवाना में, तो क्यूबा हैड वेरी गुड रिलेशंस विथ रशिया। और क्यूबा वहां पे क्या बोलता है कि
यूएसएसआर एज अ नेचुरल फ्रेंड ऑफ नैम। क्योंकि एक तरफ नैम जो है, इट वॉज देयर फॉर द नेशंस हु आर नॉट टेकिंग साइड्स। हमें ना यूएसएसआर के साथ रहना, हमें ना यूएसए के साथ रहना है। दैट इज वाई वी हैड दिस ग्रुपिंग। लेकिन इस ग्रुप में क्या हुआ कि क्यूबा हु वाज द प्रेसिडेंट, क्यूबा ने खुद कह दिया दैट यूएसएसआर इज अ नेचुरल फ्रेंड ऑफ नैम। ठीक है। सो इस तरीके से मेनी अ टाइम्स नैम इटसेल्फ हैज चैलेंज्ड इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। क्योंकि अगर आपका एग्जिस्टेंस ही ऑन द बेसिस ऑफ नॉन अलाइनमेंट है, हाउ कैन यू से दैट वन ऑफ द पोल्स इज योर बेस्ट फ्रेंड? वन ऑफ द पोल्स मतलब यूएसएसआर। यू सिंपली कैन नॉट। क्यूबा, लेकिन क्यूबा उस समय नैम का प्रेसिडेंट था ना, और वो नैम के समिट में बोला। ऐसा थोड़ा नहीं कि क्यूबा ने खुद से कुछ बोल दिया। क्यूबा बोल रहा है यूएसएसआर इज अ नेचुरल फ्रेंड और नेचुरल पार्टनर ऑफ नैम। और वो भी कब बोल रहा है? व्हेन क्यूबा इज द प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट अगर कुछ बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, इट मींस ही इज रिप्रेजेंटिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन। सो मेनी अ टाइम्स दिस हैज आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड कि नैम बेसिकली क्या था? जो नेशंस थे हु वर क्लोजर टू द यूएसएसआर। क्योंकि देखो, इंडिया यूएसएसआर के क्लोजर था, इजिप्ट भी यूएसएसआर के क्लोजर था, यूगोस्लाविया खुद कम्युनिस्ट ब्लॉक का ही नेशन था और वो भी यूएसएसआर का क्लोजर था। सो दैट इज वाई मेनी अ टाइम्स इट वाज आल्सो आर्ग्यूड कि आप एजेंडा चाहे कुछ भी रखो, बेसिकली नैम के अंदर जो एजेंडा है वो एंटी अमेरिकन एजेंडा है। ठीक है। और अलग अलग समय पर, जैसे साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड चल रहा था, उसके अगेंस्ट आवाज उठाया और उसके अगेंस्ट बोला कि ठीक है, अब हम अफ्रीका पर सैंक्शन लगाएंगे, उससे तेल वेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम these nations or NAM has been taking multiple initiative to set discourse for the global agenda। ठीक है। उसके बाद देखो आपका 9th समिट हुआ था 1989 में। वहां पे फोकस था इंटरनेशनल टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एटसेट्रा। उसके बाद हुआ 1992 में, इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय पीवी नरसिम्हा राव, एंड दैट वाज द फर्स्ट नैम आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। क्योंकि 1991 में कोल्ड वॉर खत्म, नैम 1992 में हो रहा है। सो देयर वाज क्वेश्चन अमंग द नेशंस देमसेल्व्स कि इफ द कोल्ड वॉर हैज एंडेड, इफ द वर्ल्ड इज नो मोर बाइपोलर, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग नैम? क्योंकि नैम जब कोई पोलैरिटी नहीं रही, अलाइनमेंट का मतलब क्या बनता है? सो इसीलिए कुछ कुछ नेशंस जैसे कि इजिप्ट वगैरह ने बोला था कि नैम को डिसॉल्व कर दो, कह दो कि नैम का जिस पर्पस के लिए एग्जिस्टेंस में आया था, टू रिड्यूस द टेंशंस इन अ बाइपोलर वर्ल्ड, दैट हैज एंडेड। क्योंकि वर्ल्ड इज नो मोर बाइपोलर, सो देयर वॉन्ट बी एनी सच टेंशंस। तो इसलिए अब मेरे होने का मतलब क्या है? तो देखो, वो तो आप इंडिविजुअल कंट्री तो कभी भी जा सकता है ना नॉन अलाइनमेंट के लिए। अब नैम रहे या ना रहे, इफ इंडिया हैज अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इट हैज अ पॉलिसी। नैम तो 1961 में आया एग्जिस्टेंस में, उससे पहले भी तो इंडिया का नॉन अलाइनमेंट का फॉरेन पॉलिसी था ना। फिर पॉइंट क्या बनता है? गॉट इट? तो इस समय बहुत सारे स्कॉलर्स थे, जैसे कि सुमित गांगुली वगैरह, वो आज भी बोलते हैं ना कि उसी समय आपको नैम को खत्म कर देना चाहिए, कि नैम का क्रिएशन का जो गोल था वो अचीव हो गया। ठीक है। लेकिन नैम उस समय खत्म हुआ नहीं। रिसेंट टाइम्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ कोविड के टाइम पर नैम का एक ऑनलाइन ये हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था,
सिर्फ उसी समय मोदी जी अटेंड किए थे और उन्होंने कहा था नैम इज मोरल वॉइस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन उसके अलावा इन रिसेंट टाइम्स, जैसे लास्ट टाइम जो हुआ, आई थिंक घाना था या कोलंबिया था, वहां एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अटेंड किया, उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट ने अटेंड किया, उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट ने अटेंड किया। तो ऑल दिस इंडिकेट्स दैट इवन among the NAM members the significance of NAM is going continuously down। ठीक है, और बाकी तो जैसे सी राजा मोहन हर्षपंत वगैरह कहते हैं कि नैम जो है भैया वो कोमा में चला गया है। आएगा तब ना, तब तक के लिए क्या। ठीक है, तो अब देखते हैं नैम के अचीवमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मॉर्टन का प्लान का लूज बाइपोलर मॉडल देखें, तो लूज बाइपोलर मॉडल यही कहता है ना दैट अल्टीमेटली जो नैम बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नैम, जो कोल्ड वॉर के जो टेंशंस थे वो टेंशन कम हुए हैं, राइट। उसके अलावा नैम प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन अफ्रीका एज वेल एज रेजिंग वॉइस अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके अलावा नैम का जो एजेंडा है कंटिन्यूअस एंड वेरीफाइबल डिसआर्मामेंट, तो नैम उसके बारे में सॉरी वो नैम का अचीवमेंट रह गया। ठीक है, उसके अलावा वेदर वी आर लुकिंग एट वियतनाम क्राइसिस, सो एवरी या फिर 1970s में व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो नैम हैज ऑलवेज बीन अ वोकल एडवोकेट ऑफ अपग्रेडिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड मॉनिटरी सिस्टम। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स के थिंक कुछ तो देखो ऑल दीज स्कॉलर्स उनका बेसिकली क्या तारीफ है नैम का, वही जो हमने ऊपर में लिख रखा है। नैम ने जो है वो इट रिड्यूस द टेंशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, नैम्स एडवोकेसी फॉर एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी अपार्थाइड, नैम्स फोकस ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, नैम्स डिमांड फॉर फेयर ट्रेड। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स, चाहे वेदर यू टॉक अबाउट अप्पादोराई, जोसेफ नाई कहते हैं नैम रोल इन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। Amartya Sen, he talks about NAM became a platform for economic cooperation between the nations of global south। इमैनुअल वॉलस्टीन ने NIEO की बात की है, तारीफ की है। ठीक है, सो दीज आर ऑल डिफरेंट अचीवमेंट्स ऑफ नैम। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोल्ड वॉर को खत्म होने के पीछे के लिए कहते हैं कि भैया नैम वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि नैम ने दोनों देशों के बीच में टेंशन खत्म कर दिया था, प्लस नैम बिकेम अ पूल इन इटसेल्फ, so that is why it helped in reducing the tension। ठीक है, अब देखते हैं challenges of NAM। ठीक है, हाँ हाँ, ट्राइपोलर नहीं था क्योंकि देखो आप, हाँ देखो पोल जैसा बन रहा है, लेकिन क्या इसका वो इन्फ्लुएंस है जो बाकी दोनों पोल्स का है। इसीलिए क्योंकि अगर आप याद करो जब हम पार्टी सिस्टम भी पढ़ रहे थे तो हम क्या कहते थे, वो जो पार्टीज जो कि सिस्टम को विच हैव सिस्टेमिक इन्फ्लुएंस, तो नैम वाज अ गैदरिंग ऑफ टू मेनी नेशंस, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या थी, दे लैक्ड एन इन्फ्लुएंस। एंड इनफैक्ट जो नैम के मेंबर्स थे दे वे आर ऑल्सो गोइंग फॉर हैविंग डीपर रिलेशंस विथ दी सुपर पावर्स।
तो हम इसे थर्ड पोल कैसे कर सकते हैं? थर्ड पोल कभी कहेंगे ना जब ये इतना स्ट्रांग हो कि इन्फ्लुएंस कर सके चीजों को। अगर ये स्ट्रांग ही नहीं है तो हम थर्ड पोल की बात कैसे कर लें? ठीक है, पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, ये क्या मजाक है? एक मिनट रुक जा। देखो मैं कर तो देगा, मैंने मैसेज तो कर दिया है। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस, तो देखो एक तो जो सबसे बड़ा आपने खुद बता दिया कि हम नैम को थर्ड पोल क्यों नहीं कह रहे थे। बिकॉज ठीक है, यू आर सेइंग दैट देयर आर सो मेनी नेशन, इनफैक्ट देयर आर, आज के डेट में देयर आर 120 नेशंस, लेकिन दे लैक्ड दैट ग्लोबल हेफ्ट। ठीक है ना, कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो, तो देखो जब हम बोल रहे हैं कि ऑल दीज न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, जरूरी नहीं है ना कि उन सारे के सारे नेशंस डेमोक्रेसीज हों। देयर विल बी फ्यू हु विल बी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नेशंस। जैसे हम यूगोस्लाविया की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, डेमोक्रेसी है, कुछ नेशन में स्टिल देयर माइट बी मोनार्की। सो इसके कारण देयर वॉज डाइवर्सिटी, और जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है तो जो स्कोप रहता है, इतनी जब डाइवर्सिटी रहती है तो स्कोप फॉर हैविंग अ कॉमन एजेंडा, हैविंग एन यूनानिमस डिसीजन, यूनानिमस ओपिनियन। अभी वही मैंने कब भेज रखा है, अभी मैसेज भेजा है कि वही कर रहा था, डन। मैंने जब दोबारा मैसेज भेजा ना, तब इसने करना स्टार्ट किया, क्योंकि असल में कुछ करना होता नहीं है, बस हाँ, क्योंकि बस आप उसको वाटर मार्क लगा दोगे, हेडर फुटर लगा दोगे, पीडीएफ बना करके अपलोड करना है। अब हो गया होगा यार, क्या बोलूं मैं। ठीक है, ये दूसरी चीज है। तीसरा फैक्टर क्या दिक्कत है? इकोनॉमिकली ऑल्सो दीज नेशंस दे डिफर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मेनी मेंबर्स दे हैड कॉन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्व्स। जैसे कि अगर हम ईरान इराक को देखें, दोनों के दोनों नैम के मेंबर्स थे, लेकिन दोनों के बीच में आपस में टेंशन था। ठीक है, उसके अलावा
एक बार जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो नैम का मतलब ही क्या? क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन अलाइनमेंट, दिस नॉन अलाइनमेंट वाज बिकॉज ऑफ बाइपोलैरिटी। जब बाइपोलैरिटी ही खत्म है तो फिर नैम का मतलब क्या है? So that is why scholars they have gone for criticizing it. तो इसीलिए जब सुमित गांगुली हैं, सुमित गांगुली साफ साफ कहते हैं कि नैम को जो है ना, नैम को खत्म कर देना चाहिए था 1991 में ही, सॉरी 1993 में ही, कि एजेंडा हैज बीन अचीव्ड, बात खत्म, क्योंकि टुडे नैम हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। क्योंकि व्हेन यू आर लुकिंग एट नेशंस लाइक इंडिया, इंडिया खुद क्वाड में जा रहा है यूएसए के साथ, डीपर इकोनॉमिक रिलेशंस, डीपर अदर रिलेशंस। इन द पास्ट ऑल्सो इंडिया ने किसके साथ अलायंस किया था? यूएसएसआर के साथ ड्यूरिंग 1971, राइट? सो ऑल दीज इंडिकेट्स कि नैम जो है, यस इट इज अ ग्रुप, बट इसका पर्पस, इसका रेलेवेंस, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स अलग अलग एजेंडा, मेनी ऑफ द नेशंस दे आर प्रो यूएसए, सम नेशंस आर प्रो यूएसएसआर, सम नेशंस आर न्यूट्रल। तो जब देयर विल बी सो मच डाइवर्सिटी in their foreign policy agenda, their foreign policy concerns, it is but obvious कि there will be challenges in any sort of collaboration। क्योंकि नैम अगर एक क्यूबा में हुआ तो बोल दिया कि यूएसएसआर इज अ पार्टनर। इंडिया कहता है कि नहीं, हमें कोई ब्लॉक नहीं, किसी ब्लॉक के साथ नहीं आना है। सो दीज आर ऑल, this shows that how much diversity or how much disparity among nations were there with respect to their foreign policy options or foreign policy decisions। ठीक है? Richard House and Paul Kennedy, they say that with the end of Cold War, NAM has simply lost its relevance। And in the absence of superpower rivalry, the core purpose of NAM has lost its relevance। सुपर पावर राइवलरी है तभी नैम के होने का मतलब है। अगर सुपर पावर राइवलरी रही ही नहीं तो नैम का मतलब क्या है? ठीक है, ये जो हम आइडियोलॉजिकल राइवलरी की बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं सुमित गांगुली। He says that among NAM members some are democracies, some are authoritarian regimes, some are communist nations। तो ऐसे में क्या दिक्कत है कि इनके जो नेशनल इंटरेस्ट है दे डिफर and it is difficult to arrive at consensus। right? ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बारे में B.R. टॉमलिंसन, इन्होंने कह रखा है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बारे में कि अमंग नैम मेंबर्स देयर इज टू मच इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। सो दैट इज वाई इट इज अगेन डिफिकल्ट, क्योंकि देखो जो गरीब नेशन रहेगा वो बात करेगा डेट रिलीफ की, जो अमीर नेशन रहेगा वो बात करेगा ट्रेड का। तो कॉमन एजेंडा पर आओगे कैसे? राइट? We have already seen that among these nations, among the NAM nations, where there were conflicts। मैंने ईरान इराक का नाम लिया। सी राजा मोहन कहते हैं कि नैम इज इन कोवा, सॉरी नैम इज इन कोमा। It has stopped being foreign policy priority for many of the nations, and the end of Cold War has made NAM irrelevant।
प्रीवियसली इट वाज डिसफंक्शनल, लेकिन एक बार जो कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद नैम का क्या हो गया, नैम हैज बिकम इररेलेवेंट। ठीक है, ये सी राजा मोहन का कहा हुआ है। तो ऑल दीज थिंग्स इट इज मेंशन्ड इन योर मटेरियल। ठीक है, अब देखो, आफ्टर डिस्कसिंग द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, अब देखो जब हम नैम की बात कर रहे हैं तो इंडिया के जो पुराने प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन, he had said that NAM is not some ism। इज्म मतलब सन आइडियोलॉजी, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया। सो ही सेज दैट नैम किसी तरह का आइडियोलॉजी नहीं है, इट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर। जब हम अभी देख रहे हैं तो द नेशंस ऑफ ग्लोबल साउथ दे आर फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। पोस्ट कोविड के कारण जो दिक्कत है सो अलग है। इमर्जेंस ऑफ न्यू कोल्ड वॉर एंड दिस re-emergence of major power conflict with Russia and China on the one side and USA on the other side. There are global conflicts like between Russia and Ukraine, Israel and Hamas. So ऐसे में जो छोटे छोटे देश हैं who have impacted because of these conflicts, what is a platform for them to make their concerns heard, to present their point of view? NAM becomes an important platform, that is why। क्योंकि देखो अभी जब हम ग्लोबली देख रहे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस है, डेट रिलीफ का इशू है, पैंडेमिक का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, राइट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इशू है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर। सो दीज आर ऑल ग्लोबल इन नेचर एंड ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स are impacting developing and the poor nations the most. So in such a scenario, NAM can emerge at that platform to put an agenda, जैसे कि during the Cold War, NAM was the platform for voicing concerns with respect to the challenges of nations of global south, nations of Asia and Africa. Similarly, today also, NAM can be that platform to raise the voices or to raise the concerns being faced by the developing nations and the LDCs, that is least developed countries.